Please open your maths book, countdown book 6, and this is your second term lecture number 1. We are going to start our second term from algebra, chapter number 8, introduction to algebra, page number 118. सबसे पहले आपको अलजेब्रा की कुछ टर्म्स हैं जो समझनी होंगी और ये टर्म्स आपने अपनी कॉपी पे लिखनी भी हैं और लर्न भी करनी है. सो व्हाट इज़ सेंटेंस एंड व्हाट इज़ स्टेटमेंट इन अलजेब्रा. कोई भी लाइन या कोई भी चीज़ जिससे हमें कोई मतलब समझ में आ रहा हो, दैट इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस. It's a set of words or symbols that convey some meanings. Like earth moves around the sun. Why are you so glad? So these are all sentences. अब इन sentences में से कुछ true हैं और कुछ false हैं. So the sentences that is either true or false, that is called a statement. Okay? Sentence that is either true or false is known as statement. तो sentence और statement में difference आपको समझ आया? Anything written which conveys some meaning is a sentence. And if a sentence is true or false, that will become a statement. So a statement can be true, can be false, but not both, right? Or neither. Now see, earth moves around the sun. Is it true? Yes, this is a true statement. Okay? Now see, liquid flow from lower level to higher level. ऐसा होता है कि कोई liquid चीज़ हो तो वो नीचे से ऊपर की तरफ flow करे. This is false. ठीक है? So this is a false statement. True statement, false statement. Now see, go on. Go on ना तो true है ना false है. ठीक है? This is a simple statement. Why are you so glad? ये भी कोई true या false नहीं है. So सिर्फ true false वाले sentences ही statement कहलाएंगे. Clear? So इस तरह के sentences जो true false ना हों उनको हम क्या कहेंगे? ओपन स्टेटमेंट्स. ठीक है? दोज आर कॉल्ड ओपन स्टेटमेंट्स, जिनके बारे में कोई ट्रू या फॉल्स की हम नहीं बता सकते. ठीक है? सो आपने ये डेफिनेशंस अपनी कॉपीज़ पे राइट करनी है. सेंटेंस, स्टेटमेंट, ओपन स्टेटमेंट. सो ओपन स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या हुई? दैट we cannot tell the statement that whether it is true or false by the given information, right? We have to solve the question to find it that whether it is true or false. So that will be your open statement. Now see, 3 plus dash equal to 7. We can't say that it is true or false. If I put 4 here, then it will be a true statement. Okay? But if I write 2 here, that will become a false statement. Clear? So this is for the time being, this is a open statement. So exercise 8A में first question है कि whether the statement is true or false or open. Question number 1 का मैंने 7th part लिखा है. 5x plus 5 equal to 10, then x equal to 1. अब ये हमारे पास प्रॉपर सॉल्व नहीं है. ठीक है? इसको देखते ही मैं नहीं बता सकती कि ये ट्रू है या फॉल्स है. बट ऑल द इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन. एक्स की वैल्यू दी हुई है. एक्स की वैल्यू इसमें पुट करने से वी कैन टेल दैट वेदर दिस इज़ अ ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट. सो पुट वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज़ 1. नाउ सॉल्व इट. 5 1s are 5 plus 5, 5 and 5 10. सो यही गिवन था दैट 5x plus 5 इज़ इक्वल टू 10. सो हमने जब x की वैल्यू पुट की हमारा आंसर भी 10 आया. दैट्स मीन कि दिस इज़ द ट्रू स्टेटमेंट. ओके? सो आपने जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसको सॉल्व करते हुए फाइंड कर लिया तो वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स. इसी तरह क्वेश्चन 1 का पार्ट 5 है. 7 मल्टीप्लाई बाई डैश इक्वल टू 21. सो व्हेन दिस इज़ इक्वल टू 4. सो अगर मैं इसकी जगह 4 लगाऊँ, so whether we will get 21 or not? Of course not. This is not equal to 21. ठीक है? 7 3s are 21 होता है. That's mean this is the false statement. So हमारे पास true statement का भी आपने एक एग्जाम्पल देख ली और false की भी. तो इसी तरह क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स आपने सॉल्व करके देखने हैं कि whether this is a true or false statement. Clear? Okay, now we move to next topic, that is variable. वेरिएबल क्या होता है? जिसमें हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं दैट रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी द वैल्यू ऑफ विच इज़ नॉट नोन. ठीक है? यू विल लर्न दिस डेफिनेशन एट पेज नंबर 120. लेट्स सी, 7 plus x equal to 12. अब इसमें हमारे पास x जो है उसकी वैल्यू नहीं है. दैट मीन्स इट इज़ अ वेरिएबल. ठीक है? और x में हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं जिससे हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाए. सो x इज़ कॉल्ड अ वेरिएबल बिकॉज इट्स वैल्यू इज़ नॉट नोन. तो क्लियर है कि वेरिएबल क्या होता है? 4 multiply 6 equal to y. Here y is a variable. z minus 4 equal to 5. इसमें z जो है वो वेरिएबल है. सो वेरिएबल की आपको समझ आ गई
इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ वो अडॉप्ट कर सकता है और उसकी वैल्यू फ़ौरन से हमें फाइंड आउट नहीं होती। इसी तरह कांस्टेंट क्या होते हैं? टर्म दैट हैज़ अ फिक्स वैल्यू एंड अपीयर सेपरेटली फ्रॉम अ वेरिएबल इज़ कॉल्ड अ कांस्टेंट। लाइक 7 + x में 7, 12 दोनों कांस्टेंट्स हैं, ये फिक्स वैल्यूज़ हैं, हम 7 और 12 को चेंज नहीं कर सकते, बट x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे आ सकती है जिससे पूरी स्टेटमेंट ट्रू हो। सो 7 and 12 आर कांस्टेंट्स एंड x इज़ वेरिएबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 एंड एक्सरसाइज 8A में आपने रिप्लेस द लेटर बाय न्यूमरल टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, अब आपने इस तरह के डिजिट्स लिखने हैं कि आपकी स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। लाइक दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, 3y = 15। सो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो 3 इज़ मल्टीप्लाइड बाय y, बट जिसकी भी वैल्यू फाइंड करनी हो आपने उसको सेपरेटली लिखना है, उसके साथ जो भी कांस्टेंट है उसको वहाँ से मूव कर देना है। 3 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो हम उसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, सो जब भी एक कांस्टेंट दूसरी साइड पे जाता है उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे 3y से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जो भी वैल्यू है उससे डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? सो y इज़ इक्वल टू 15 को 3 से डिवाइड करें 5। सो आपके पास y की वैल्यू 5 आ गई। सो मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक है, एंड आई रिप्लेस दिस लेटर बाय न्यूमरल। ओके, सो y = 5। नाउ इट बिकम अ ट्रू स्टेटमेंट। कैसे? यू कैन प्रूव इट। 3y = 15, y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? 5। पुट द वैल्यू ऑफ y, 3 5 इज़ 15। सो दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। क्लियर? आपने इसको सॉल्व किया और फिर प्रूव किया कि जो स्टेटमेंट थी दैट इज़ ट्रू। इसी तरह क्वेश्चन 2 के बाकी के पार्ट्स आपने कॉपी पे कर लेने हैं। कि नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के सिंबल से कोई भी नंबर, वेरिएबल और कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स जो है वो अटैच हो तो दैट विल बिकम अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। लाइक 4x + 2y - 3z, इसमें कॉन्स्टेंट्स भी हैं, वेरिएबल्स भी हैं, ठीक है, और ये सब मिलके प्लस और माइनस के साइड से मिलाए हुए हैं, तो ये बन जाता है एक एक्सप्रेशन। ठीक है, दिस इज़ नॉट एन इक्वेशन, इक्वेशन इज़ इक्वल टू 0, राइट, बट दिस इज़ अ एक्सप्रेशन। ये वेरिएबल है, इसमें कांस्टेंट है, सो दिस विल बिकम द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो अभी तक आपने देखा था वेरिएबल्स और कांस्टेंट का टॉपिक। नाउ दिस इज़ 4x, ठीक है, सो 4 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, x के साथ जो न्यूमरल होगा दैट विल कॉल द कोफिशिएंट। 2, 3, 4 ये तीनों कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, सो द सिंबल और द नंबर अपीयर बिफोर द वेरिएबल इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट। ठीक है, सो कोफिशिएंट, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स तीनों मिला के हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। और सेपरेटली ये सब टर्म्स कहलाते हैं। 4x एक टर्म है, 2y एक और टर्म है, 3z एक और टर्म है, तो 3 टर्म्स मिलाकर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना है। ठीक है, a + bc, इसमें कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म। 2c - 3x, इसमें भी 2 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म। प्लस या माइनस के साइन से अटैच जो भी डिजिट्स हैं उनको हम टर्म्स कहेंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। इसमें a + b, इसमें 2 टर्म्स हैं और ये एक ही टर्म है। ठीक है, सो दिस आर द टर्म्स। क्वेश्चन 3 अब है राइट फॉलोइंग एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो ये आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है सम ऑफ p एंड q, आपने इसको मैथ्स में लिखना है। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? p + q। ठीक है, ओके, लेट्स सी नंबर